देखना कि ये ऑन हो। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So the point over here is not to label you guys. That is just to simulate a thing. So if we have a battlefield of 100, 10 people should not be there. 80 are mere targets. 9 out of those remaining 10 are the fighters, but it is the only one that is a warrior. You get my point? So this is how self-awareness comes into play. तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं लर्निंग की और फेशियल प्रोफाइलिंग की, विच इज़ इंडिविजुअलाइज्ड। हर बंदे के अपने लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिस तरह सर ने बताया है। आई जस्ट गो थ्रू इट क्विकली बिकॉज सर ने बड़ा अच्छा पहले बता दिया है। वी हैव एक्टिव लर्निंग, स्पेसिंग इफेक्ट एक तरीका है लर्निंग का, मल्टी सेंसरी लर्निंग, माइंडफुल लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग स्टाइल्स. So I'll just try to be quick because the didactic part, yes, it's important, but I'm really interested in when you guys can come up over here and we can do some real-time interactive facial profiling sessions. So I'll be talking about facial profiling and work learning style. It's an art and science. How does it happen? We also all know that हमने anatomy पढ़ी हुई है, ठीक है? We have facial muscles. So the more we use a muscle, the more it gets strengthened, and it is based on the science of epigenetics. Genetics आपको बहुत अच्छी आती है मेरा ख्याल है. You know what gene is, what nucleus is. हमने फर्स्ट ईयर में एनाटमी में, सेल बायोलॉजी में पढ़ लिया हुआ है. So what happens is once you go to the gym, that muscle is gone into hypertrophy and hyperplasia. Likewise, when we talk about facial muscles, whatever facial muscle we use more, it's going to go into what? Hypertrophy and hyperplasia. And through that, we can interpret, we will be interpreting it right now in this session, after this session lecture. So, I'll be telling you what your predominant learning styles are. So, objectives, as always, we have some objectives. How to have personalized instruction for everybody. Optimal learning environment क्या होगा उसके लिए. If you guys are interested, I also do energy profiling, facial profiling के साथ. That's something different. वो हम बाद में discuss कर लेंगे. Improve engagement and motivation is another important factor because we need to have that internal motivation which is going to keep us going. Enhanced comprehension and attention is one of an important factor of learning, and effective communication and collaboration is the key. Me being a teacher, if I cannot communicate with you guys what I have in my head or what I want to teach you, it's bare knowledge which is residing within my own self. So, isliye communication is the key. It's basically one of the king skills that's required for growth and success. Personal growth and self-awareness. Yes, today we'll be going about self-awareness, what our individual learning styles are. Either we are a visual learner, auditory learner, oral learner or a kinesthetic learner. Will be doing it over here right now. अच्छा, अब हम फेशियल प्रोफाइलिंग की बात कर लेते हैं. सर ने बड़ा अच्छा बता दिया. सर इज़ प्रो, आई विल से ही इज़ ऑलरेडी अ थॉरो प्रोफेशनल ऑन दैट. अब मैं अपने पार्ट पे आ जाता हूँ कि हम फेशियल प्रोफाइलिंग पे बात करते हैं तो काउंटेनेंस एक वर्ड होता है. हम खाली एक चेहरा देख के बता नहीं देते कि यू आर अ विजुअल लर्नर और यू आर अ किनेस्थेटिक लर्नर. इट्स एन ओवरऑल काउंटेनेंस दैट मैटर्स. और अभी हम स्पेसिफिकली फेशियल प्रोफाइलिंग इन टर्म्स ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं. आई डू फेशियल प्रोफाइलिंग प्रोफेशनली. आई हैव डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर दैट. वो फिर हम बाद में बात कर लेंगे. देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस टू इट, बट विल बी फोकसिंग ओवर हियर टुडे ऑन लर्निंग स्टाइल्स. सो व्हाट डू यू सी? What sort of person he is overall? A happy, joyous person, right? So just by looking at the facial outlook, you can tell, हाँ यार ये बंदा खुश है, he is sad, he is depressed. So this is what countenance means. आगे चलते हैं. We have 8 facial types. अब एक दूसरे की शक्लें ना देखना शुरू कर दीजिएगा. We have these 8 facial types. अब हम इंडिविजुअल फेशियल टाइप के क्या क्या की एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव अ रेक्टेंगल फेशियल टाइप, सो दीज पीपल आर इंटेलिजेंट, एक्टिव एंड हार्ड वर्कर.
yes, you will start looking into your own self and your colleagues, and those people who are rectangular or facial type, they'll be intelligent, active and hard worker. Then round facial type, they are self-confident, mentally sharp and adaptable people. Square shaped people, they are honest, they are stable and they are generous. So that's a science. मैं कोई वो fortune telling वाली बात नहीं कर रहा. We all who have those attributes, either we know them or we don't know them, that's a separate thing. Then oval shaped people are diplomatic, charming and intelligent. Triangular facial type people are strong, they have strong mental acuity, they are ambitious and they are realistic. Sorry, मैं थोड़ा सा जल्दी तेज़ कर रहा हूँ. You can have those slides from me. This is on my YouTube channel also, and you can contact me later on if you want any sort of facial profiling for yourself also. Diamond facial type people, they have strong authority, they are confident but they are unpredictable. Then triangular facial types, आगे चलना था. Then we have top white trapezoid who have wider foreheads. They are creative, inventor and performers. So if you want to have a new idea, you want to work on a research project or a proposal, look for a colleague or for a mentor or a teacher who is a top white trapezoid. Low white trapezoid, these people are physically strong, they are competitive and they are in charge. So that was quickly about the fundamental of how different facial types are associated with certain attributes and strengths. अब हम आ जाते हैं बात लर्निंग स्टाइल के ऊपर. Every facial element has its own classification, and not even one classification, multiple classifications. और उसको हम relate करेंगे हम अपने learning styles के साथ. So we have wide open eyes, narrow eyes, large eyes and small eyes. So if we have wide open eyes, we are receptive, we are absorbent and we are emotional. ये वो वाले आ गए other attributes which are associated with large eye people, but they will be predominantly visual learners. ठीक है? Narrow eyed people, they have a perspective. अगर आपके सामने, if I have a student जिसको मुझे perspective समझाना है, तो मैं एक छोटी आंख वाले इंडिविजुअल को, ये नहीं कि उसकी एनाटॉमिकल आई छोटी है, नो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल आई दैट इज सीन फ्रॉम द पैल्पेबल फिशर, राइट. उस छोटी आंख वाले इंडिविजुअल को मैं पर्सपेक्टिव आराम से समझा दूंगा, बट अ पर्सन और अ स्टूडेंट विद अ लार्जर आई, उसको मुझे चीज़ें बतानी याद, उसको लर्निंग स्टाइल के लिए बताना मुझे आसान होगा कि यू आर अ विजुअल लर्नर, यू कैन लर्न थ्रू विजुअल एड्स. ठीक है, लेकिन जिसको पर्सपेक्टिव समझाना ज़रूरी है, आई विल बी लुकिंग फॉर अ नैरो ऑड आई पर्सन. वो बड़ा एनालिटिकल क्रिटिकल व्यू दे रहा होगा. एक बड़ी आंख वाला स्टूडेंट मुझे मेरा क्रिटिकल फीडबैक दे रहा है ना, मुझे पता है कि ही इज़ नॉट गिविंग इट राइट. लेकिन एक नैरो आई वाला स्टूडेंट अगर मुझे फीडबैक दे रहा है, मुझे पता है कि ही हैज़ दैट इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ बीइंग एनालिटिकल एंड ऑफ बीइंग क्रिटिकल. आई विल गिव मोर वेटेज टू अ नैरोड आई स्टूडेंट, राइट और रॉन्ग. चलो अभी आपको इसकी समझ आएगी. व्हेन वी अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं ना कि रेसिपी बनती किस तरह है. व्हेन यू हैव दिस वी हैव इंटरैक्टिव सेशन, जब आप आओगे तो फिर आपको तब समझ आएगी कि इंडिविजुअलाइज किस तरह चीज़ें होती हैं. लार्ज आई पीपल, they are intelligent, imaginative and they have a spiritual balance. Small eye people are curious and self-aware. Now we come to the air. अब air जौन सा है, ये आपका auditory learning को reflect करता है. The size of the air, the shape of the air, there are multiple things to it. लेकिन small eye people, they will be cautious, they will be self-critical and they are more of introvert people. Average air individual students will be having a normal behavior. उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. You're just average on that. Large eye people, large ear people will be good risk takers. उसकी पूरी classification है, but because of scarcity of time, मैंने सिर्फ इसको बहुत छोटा रखा है to the point. So I really want to come on to the hands-on session. They are natural risk takers. They are natural leaders. They are sociable, outgoing people, extrovert by nature, and they are good listeners. There is the key. If you have larger ears, don't feel embarrassed कि मेरे कान बड़े हैं. You are a good auditory learner, right? Then we have
डिफरेंट साइज ऑफ ईयर्स, किसी ने ऑब्जर्व किया आज तक? अच्छा, अब ये होता है कि व्हेन इट कम्स टू फेशियल प्रोफाइलिंग, आवर राइट साइड ऑफ द फेस tells how good we are in our professional life. But when it comes to the left side, it tells us how good we are in our private life. So if a person or a student has a small right ear, I'll be knowing that he will be struggling in his or her professional life. But if the individual, obviously, if the right ear is smaller, the left ear is what? Larger. So that person is going to have a good पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ. सो इस चीज़ को पता करने से एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, आई कैन गाइड यू. ओके, यू नीड, आई हैव सीन दैट इनहेरेंट पोटेंशियल इन यू ऑफ हैविंग अ कॉम्प्रोमाइज चैलेंजिंग प्राइवेट लाइफ and a good professional life, and I can then help you, coach you, train you. Okay, you need to put more effort into your weaker side. So a smaller right ear, I'll suggest, okay, hire a mentor, hire a coach, go for tuitions, go for added support in your professional life, because that is your weakness. अब जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि मेरी inherent deficiency कहाँ पे है, you can work on it at a specific age. At my age of 43, I should be working on my strengths rather than trying to improve on my weaknesses. But at your age of about 20-24 की bracket में, you have to improve on your weaknesses. You cannot say, okay, this is my strength, I'm only going to work on my strengths. No, that will be a wrong approach. Yes, when you are in your 40s or 50s, you can do the same. Okay, so this is something which is integrated with facial profiling and coaching. Mouths and lips classification है, large mouth, small mouth, narrow mouth, thin lips. So large mouth people will be more of oral learners. उनकी communication skill, उनकी linguistic skills अच्छी होंगी. So people with large mouth will be more generous. They will be good in communication. Against the science of epigenetics. आप जिस organ को, जिस muscle को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, क्या होगा? वो ग्रो कर जाएगा. तो हम उससे वहाँ से वो रीड ले लेते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं. जस्ट लाइक यू डू द डायग्नोसिस, आप एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद क्या करते हो? डायग्नोस करते हो. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर गुड 15 ईयर्स, बट पहले मैं सिर्फ डेंटिस्ट्री पे कर रहा था, अब मैं फेशियल प्रोफाइलिंग पे कर रहा हूँ. फ़र्क इतना सही है बस. एंड दे लाइक टू टॉक. सो इफ़ यू हैव अ कलीग एंड ही हैज़ थिक लिप्स एंड ही और शी वांट्स टू टॉक, लेट हिम टॉक. आप में से मुझे अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे ला के बुलाना ना किसी को कि जो बोल सकता है, आई विल जस्ट लुक एट योर लिप्स एंड टेल कम ऑन, यू कम अप. समझ आई बात की? अच्छा, स्मॉल माउथ, दे आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल. ओके, ओवर हेयर आई एम नॉट एट ऑल ट्राइंग टू लेबल यू गाइज. यहाँ पे सिर्फ इसका एक मकसद है, इस चीज़ को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना. फेशियल प्रोफाइलिंग इज़, I'll say it's a weapon or it's a knife, the way you want to use it. आपने इससे फ्रूट काट के खाना बनाना है या किसी का गला काटना है, the choice is yours. That strong, specific and मतलब that big tool this facial profiling is. इसकी clinical application भी सिखाई जा सकती है, but I'll have to request sir कि आपका patient decision making कैसे करेगा, उसके लिए मुझे पूरा सेशन अदा करना पड़ेगा. लेकिन अभी के लिए आपके लर्निंग स्टाइल्स की बात हो रही है. वंस यू आर इनटू योर हाउस जॉब और हम तभी काम करना चाहें, अगर सर कहेंगे तो मे बी इन अनदर सेशन, अनदर डे, आई कैन टेल यू व्हाट योर डिसीजन मेकिंग पावर इज जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस एंड व्हाट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ योर पेशेंट, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ रिस्क यू कैन टेक फ्रॉम योर इन योर लाइफ एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ रिस्क योर पेशेंट कैन टेक. वो हम काम देख के बताते हैं. But that's a different thing that needs to be considered. Okay, small mouth belong to those who have difficulty relating to another person's point of view. I have a student whom I have to train, coach or teach, और मुझे पता है कि उसका छोटा small mouth है, तो I have had it. I will use different teaching styles for that person. ठीक है? I need not push to try to teach him or her, बिकॉज उसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं है. आई एम नॉट अगेन ट्राइंग टू लेबल द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, माई स्टूडेंट, लेकिन
as a teacher, as a facial analyst, I know what are the inherent potentials, the strengths and weaknesses. अब अगर इसी की बात करूँ तो इसकी जो सी चिन है ये स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. सो आई नो ही इज़ अ कैनेस्थेटिक लर्नर एज कम्पेयर टू एन ऑरल लर्नर. बात समझ आई? वो मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. फिर narrow mouth people, they have limited or minimal communication. Then we come to the chin. Broad chin people are strong-willed and they are confident. Square chin people are idealistic, sensible and straightforward. Small chin people are tolerant, they are easily influenced and have to work hard to live life under their own terms. Very small chin, they are dreamy, creative and they are easily influenced. So you can apply to your own self, you can apply to your colleagues, you can apply to your patients. मतलब आपके सामने पेशेंट है और आपको उसको कन्विंस करना है, उसकी स्मॉल चिन है, he will respect you because of that inherent small chin potential. Yes, because of the authority of the overall and the position that you have as a professional. But strong chin वाले को आप कन्विंस करना आपके लिए मुश्किल होगा. ठीक है, उसको आपको और तरह से कन्विंस करना पड़ेगा. सो दैट्स फॉर टुडे. जो ये वाला पार्ट था फेशियल प्रोफाइलिंग का. अब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, दोज हु वांट्स टू हैव देमसेल्व्स प्रोफाइल्ड, you can come up over here. It's all consent based. I'll be recording it for my testimonial purposes and I can profile you. और जो नहीं रिकॉर्ड करना चाहता, no problem, I'll just switch off that mobile and you can come up for profiling also. Anybody who would know? अभी हम सिर्फ फेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, आपके लर्निंग स्टाइल बताएंगे कि क्या क्या स्टाइल है. Any questions? First we'll take questions, 2-3 बस, और उसके बाद एक्चुअल जो चीज़ है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है. आई विल बी टेलिंग यू योर लर्निंग स्टाइल्स ओनली, नथिंग एल्स, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने अभी अपने 746 आउटपुट्स हैं जो फेस से पढ़ी जा सकती हैं. 746 आउटपुट्स कैन बी रेड फ्रॉम अ सिंगल फेस. आउटपुट्स का मतलब है कि अगर इस आँख से मैंने बताई लार्ज आई की, इमोशनल, इंटेलिजेंट, visual learner, so these are 3 outputs. There are approximately 265 elements जिनके ऊपर हम रीड दे रहे होते हैं. ठीक है, चलो anyways, anybody आज can we have these lights on? ये लाइट ऑन हो सकती है? आज एक ही आता है, 2 आ सकते हैं. नहीं एक ही है ना, मैं यहीं पे खड़े होना, बस यहाँ पे खड़े होना बस. यहाँ सर ये लाइट्स ऑन हो सकती है हमारी? बस ठीक, दैट्स इट. ठीक है, ओके. अच्छा नहीं, आपने इधर देखना है ऐसे. क्लास ओके. यू आर मोर ऑफ एन ऑडिटरी लर्नर. हेलो सर, हिल जाता है. हेलो, कैन यू हेयर मी ना? नहीं वो ठीक है, वो इधर से हिल जाता है. हेलो, नहीं अब तो बंद हो गया. हेलो, उसका यार ये लो, कर लो, कर दो. हेलो, नहीं आ रही, उसको बुलाओ. ओए कोई नहीं, अभी आप लोग वैसे सुन लेना, आवाज़ आ जाएगी. थोड़ी सी ऊंची कर लेता हूँ अपनी आवाज़ में. अच्छा, यू आर मोर ऑफ एन ऑडिटरी लर्नर. यू लर्न. अब अच्छा, उसमें परेशान होने की बात नहीं, लेबल करने की बात नहीं है. ठीक है, अगर और यू हैव टू गिव मी कि अच्छा ये सही है कि गलत है, मतलब एक वैसे बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर अब मैं करूँगा, मैं 1 2 3 4 प्राइमरी बता दूँगा कि आप विजुअल लर्नर हो, ऑडिटरी हो, ऑरल हो या काइनेस्थेटिक हो. ठीक है, जस्ट बाय लुकिंग एट द फेशियल फीचर्स. थोड़ा सा सीधा करें. सो आई विल रेट फर्स्ट इज़ योर ऑडिटरी लर्निंग. अच्छा ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा दरमियान में हो जाते हैं, हम दरमियान में हो जाते हैं. बस ठीक है, यहाँ पे ठीक है. कैन यू हेयर मी? हेलो, ओके.
चलें, इंटरेस्ट होगा तो आवाज़ आ जाएगी आखिर तक, वरना आपको वहाँ पे कर लेंगे. सो प्राइमरी इज़ योर ऑडिटरी लर्निंग, secondary is your kinesthetic learning, second option, you learn by doing and think. Third is your visual and last is your oral learning style. कितना ठीक है, किस तरह से याद करते हो? विजुअल ठीक है, लेकिन ये है कि अब ऑडिटरी लर्निंग इज़ योर स्ट्रेंथ, यू वर्क ऑन इट एंड वी कैन डू इट. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप लोगों के साथ जो फॉर्म शेयर किया ना सर ने, उसके अंदर हम आपके सारों के डेटा कलेक्ट करके फेस रीड करके आई विल बी गिविंग यू दैट एज अ फीडबैक आल्सो इफ़ यू वांट इट. ठीक है, तो ये सिर्फ लाइफ के लिए है कि जो भी करंटली करवाना चाह रहा है, मतलब इस तरह से इस ऑडियंस के अंदर थोड़ा सा ज़रा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं हर एक को इतना इंडिविजुअल टाइम देना, लेकिन आई विल बी डूइंग इट फॉर रिसर्च पर्पस एंड फॉर डाटा कलेक्शन इंडिविजुअली आल्सो. ठीक है, चलो दैट्स इट. नेक्स्ट, एनीबडी एल्स हु वांट टू? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा सा नीचे. अच्छा, नहीं बस. अच्छा, प्राइमरीली ऑरल, नंबर 1 ऑरल, नंबर 2 ऑडिटरी, नंबर 3 जौन सा है इनका विजुअल है, लास्ट इज़ योर काइनेस्थेटिक लर्निंग. नंबर 2 ऑफ काइनेस्थेटिक. दैट्स फाइन, ठीक है, बस ठीक है. लेकिन ये है कि ये मेरी रीड है, मतलब यू कैन हैव अ डिफरेंस फ्रॉम दैट, फ्रॉम वट एवर जो मैं बता रहा हूँ. इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो मैंने बताया वो ठीक है, लेकिन ये है दैट इज़ बेस्ड ऑन माई फेशियल एनालिसिस. यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड यू कैन यूज़ दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू एंड दैट माइट हेल्प यू. मकसद सारा ये था बात करने का. देखो, वेलकम. थैंक यू सर. और कोई? एनीबडी एल्स? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप एक मिनट ठहर. अच्छा, नंबर वन ही इज़ अ काइनेस्थेटिक लर्नर. नंबर 2 ऑरल बोल के, नंबर 3 विजुअल एंड लास्ट ऑडिटरी. ठीक है, ओके. अगर जी सर कहने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गिव मी अ नंबर. मतलब आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10 कितना ठीक था? थैंक यू जी. I'll say two skills, kinesthetic and oral first, then oral and last is visual learner. कितना? और ज़्यादा ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, काइनेस्थेटिक. अच्छा, विद काइनेस्थेटिक मीन्स कि वो डेंटिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई होता है, बिकॉज वी डू मोर ऑफ मैकेनिकल वर्क. ठीक है, दैट डज नॉट रूल यू आउट. इफ़ यू आर इनटू सर्जरी और इनटू सम मैकेनिकल थिंग, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली. तो ही इज़ प्राइमरीली, नंबर 1 इज़ अ काइनेस्थेटिक लर्नर, नंबर 2 इज़ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल वाला, नंबर 3 इज़ ऑडिटरी एंड लास्ट इज़ हिज विजुअल लर्निंग स्टाइल. कितना ठीक है? हाँ सर 10 आउट ऑफ 10. थैंक यू. आज जब मैंने फेशियल प्रोफाइलिंग शुरू की थी ना, तकरीबन 1 साल पहले. अच्छा, बाय द वे आई हैव अ सोसाइटी आल्सो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, आई रन दैट. तो तब मेरा ये जो सक्सेस रेट था वो तकरीबन कोई 65% था एक्यूरेसी अबाउट फेशियल प्रोफाइलिंग. नाउ इट्स अराउंड 90%. नेक्स्ट. अच्छा जी, I'll say oral, auditory and kinesthetic 1, ये दोनों इक्वल हैं. फिर oral और लास्ट इज काइनेस्थेटिक, oh sorry विजुअल, लास्ट इज विजुअल. यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट. जब हम ये
जब ये लर्निंग स्टाइल की वर्कशॉप होती है ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है फॉर टीचर, जो मैं करवाता हूँ CHP में करवाते हैं हम। आपके लिए खुद इसको बहुत ब्रीफ कर दिया गया था। हम पूछते हैं पहले, सबसे पहले टीचर से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आप कौन से टाइप के लर्नर हैं, और वो कहता हूँ मैं कि फॉर्म जो है इसके ऊपर लिख ले आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, विच टाइप ऑफ लर्नर यू आर। टीचर्स वो अपने फॉर्म पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम उनको ये जो क्वेश्चनियर हमने शेयर किया आपसे ग्रुप में, यही वाला प्रिंटेड फॉर्म में उनको देते हैं, वो खुद से असेस करते हैं एंड मिनिमम 50% टीचर्स का मिनिमम अपने बारे में जो ख्याल होता है वो चेंज होता है। सो मैं खुद अपने बारे में क्या समझता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बारे में सही समझूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी पर्सनैलिटी या मेरे लर्निंग स्टाइल या मेरी एक्टिविटी या मेरी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मैं वीक हूँ, तो मैं प्लान कर सकता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा करूँ और अपनी वीकनेसेस को कवर करने की कोशिश करूँ। जैसे सर ने कहा, इस एज पे शायद मैं सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे काम करना चाहूँगा, वीकनेसेस शायद अब मेरी दूर ना हो, उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन आप लोग दोनों काम भी कर सकते हैं और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनमें खास तौर पे कर सकते हैं। सो एक वो असेसमेंट है जो सेल्फ असेसमेंट है जो है, विच मे बी राइट एंड विच मे नॉट बी दैट राइट। सो अगर कहीं से पता चल जाए कि किस टाइप के लर्नर हैं आप, ख़ास तौर पे ये जो फॉर्म फिल करके और फेशियल प्रोफाइलिंग से, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करो तो शायद आप इससे भी ज़्यादा अच्छे लर्नर बन सको। ये जो फेशियल प्रोफाइलिंग है, सर मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। इसको सादा ज़बान में समझाने के लिए ये है कि लोगों की फेस के फीचर्स को स्टडी करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जब साइंटिफिकली रिसर्च के तरीके से देखा गया तो पता लगा कि जिनके फेशियल फीचर्स ये होते हैं उनके ये एट्रीब्यूट्स या ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑब्वियसली ये 100% तो इसको आप एक्यूरेसी नहीं कह सकते, लेकिन ये काफ़ी हद तक बता देता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर ने आपको जैसा बनाया और जो लाइफ आपने गुजारी उसके बाद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप हुए, वो शायद खुद अपना चेहरा देख के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई हमें गाइड कर दे कि ये वाली आपकी स्ट्रेंथ्स है, ये वाली आपकी वीकनेस है, ये आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, तो हम शायद आगे फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। दिस वाज द मेन गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम एक तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आप कौन से लर्नर जो स्टाइल है, लर्नर स्टाइल है, उसमें कौन से भी फॉल करते हैं, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी वीकनेसेस को थोड़ा सा उनको भी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एक वो तरीकाकार वो फॉर्म का है और दूसरा तरीकाकार फेशियल प्रोफाइलिंग है, कि जिससे आपको, जैसे सर ने बताया और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो 8 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 वाले भी सर की असेसमेंट ठीक है, और मज़ीद अगर आप अपने आप पे इस पर काम करो तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी। अब अगर बिलफर्ज कोई है ही ऑर्डिनरी लर्नर और वो कोशिश कर रहा है सिर्फ किताब पढ़ने से, तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है आज से अगर ये अवेयरनेस आपको आ गई कि मेरी स्ट्रेंथ जो है या मेरा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है वो ये है कि मैं सुन के ज़्यादा सीखता हूँ, तो वो एटलीस्ट अपनी एक्टिविटीज़ में आज से सुनना भी शामिल कर लें। अगर उसको लगता है नहीं मैं फ्लो चार्ट बना के ज़्यादा अच्छा लर्न करता हूँ और ये पता चल जाए उसको, तो वो शायद इसको आज इनकॉर्पोरेट कर ले, इससे पहले ना करता हो। तो बेसिक पर्पज़ यही है कि आपकी लर्निंग को एनहांस किया जाए। Anybody else? हाँ जी। Anyone else want to know? Anybody else? It's fine, कोई मसला नहीं है। हमने जो फॉर्म शेयर किया आपसे, इसको काइंडली फिल करके इसको आपने रिटर्न करना है, और आज की आपकी जो अटेंडेंस है वो आपके फॉर्म की सबमिशन से रिलेटेड होगी। और इसका टाइम भी ये नहीं है कि ये रात को जाके आप भेज देंगे तो हो जाएगा, या घर से कोई और भेज देगा। ये वो होगी जो आपने लगाई है अटेंडेंस, उसके साथ मैच करके बनेगी, घर पे बैठे हुए लोगों की नहीं लगेगी। इसमें सर वो अगर फॉर्म के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बता दें अगर वो अपनी नहीं भी करना चाहते। हाँ, अच्छा एक और चीज़ है, बॉयज़ वोंट बी हैविंग द प्रॉब्लम कि हमने ना फ्रंट और लैटरल प्रोफाइल उस पर अपलोड करना है,
बिकॉज उधर से मैं फेस रीड करके तो मैं आपके वहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। सो इफ़ समबडी डज नॉट वांट हिज और हर फॉर्म हर पिक्चर, आप अपलोड भी कर सकते हैं, लाइव पिक्चर लेके उसको वहाँ पे भी फॉर्म कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट इट फॉर योर सेल्फ, कोई भी इंटरनेट से या अपने किसी और फेस की जो आपके फेस के उस फीचर के साथ रिलेट करता हो, बात समझ आई? अगर इफ़ यू आर पर्दा ऑब्जर्विंग और डोंट वांट टू हैव योर फेस देयर फॉर रीजंस, प्राइवेसी रीजंस, तो आप अपने चेहरे से मिलते जुलते किसी आइकॉन, मॉडल, एक्टर, किसी पिक्चर वो लगा दीजिएगा, मैं उस पर असेसमेंट कर लूँगा। दैट इज़ ओनली फॉर दोज के जो पर्दा ऑब्जर्विंग है, जिनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट्स नहीं हैं। अगर आपके इंस्टा और फेसबुक पे सारा चल रहा है और वहाँ पे आपको पर्दे की ज़रूरत आ जाती है, तो दैट डज़ नॉट मेक सेंस। ठीक है, लेकिन करना है हमने बेसिकली, दैट्स नॉट अ वेरी सीरियस मैटर। लेकिन ये है कि हमने अपने आप लोगों के इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि यू विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ लर्नर यू आर इस फॉर्म को फिल करने से। ठीक है, और उससे फिर देखेंगे किस तरह आप लोगों के साथ हमने और इम्प्रूव करनी है आपकी लर्निंग स्टाइल्स को। वैसे जो तस्वीरें हैं, चाहे वो लड़कों की हो चाहे वो लड़कियों की हो, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हाँ। वो पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। उसमें कोई वो उसके लीक होने की वो नहीं है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि जिन लोगों के अगर फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं और वहाँ पे अगर उन्होंने पिक्चर शेयर की हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो लोग नहीं करना चाहते, स्टिल नहीं करना चाहते, वो अपने फेशियल फीचर से मिलती जुलती फेशियल फीचर्स के जो लोग हैं, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो या कोई और ऐसा जिसको एतराज़ नहीं है शेयर करने, उसी के साथ आपका मैच करता है, फेस फीचर मैच करते हैं, तो आप वो भी उस पर अपलोड कर सकते हैं। इससे डॉक्टर साहब जो है वो ज़्यादा डिटेल से एनालिसिस करके आपको शेयर कर सकते हैं, खासतौर पे जो आप है। और वो ये जो हमने एक्टिविटी एक होगी वो फॉर्म फिल करेंगे, क्वेश्चनर से पता लगेगा, और दूसरा फेशियल प्रोफाइलिंग से पता लगेगा, और उसको कोरिलेट करके भी देखेंगे कि वो जो आपने फिल किया है और जो आपके फेशियल फीचर्स हैं, क्या दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, और इससे ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह, और यू विल बी इन बेनिफिट इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलिए। मोर ऑफ अ काइनेस्थेटिक लर्नर, नंबर 1 काइनेस्थेटिक, नंबर 2 ऑरल, नंबर 3 ऑडिटरी, एंड लास्ट इज विजुअल। कितना ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ कितना ठीक है? और बताऊं? बाद में बताऊंगा। सबके बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा Anyone else? ठीक है सर। चलिए अपने फॉर्म फिल करेंगे। हाँ प्लीज़ ये इंश्योर करें कि हमारी वो उसके साथ है, फॉर्म फिल करने के साथ। क्वेश्चन था कि सर स्टूडेंट कुछ लोग होते हैं जिनका ना एनालिसिस सेल्फ का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना हाँ, उसका नहीं पता लग जाता कि किस हाँ। टाइप के वो लर्नर है। हाँ अगर वो किसी प्रोफाइलिंग होगी तो कर देता हूँ हाँ। प्रोफाइलिंग एग्जाम्पल, क्या उसको वो अगर वो जिस तरह आपने कहा कुछ एरर भी होते हैं इसमें, काफ़ी चांसेस होते हैं, थोड़े बहुत होते थोड़े हैं। हाँ बहुत होते हैं। अगर वो सर कोई गलत अगर उसका फेशियल फीचर बता दिया उसको, क्या उसको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करेंगे? फिर वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये है कि हम फाइल करते हुए ध्यान रखते हैं कि सारी पहले नेगेटिव बातें ना बताएं, उसके पहले क्वालिटीज़ बताएं और फिर नेगेटिव बताएं अगर ज़रूरत पड़े तो। अच्छा क्लास आप सतत फॉर्म फिल करें। आई हैड सेशन इन LMDC मतलब 2 months बैक ना, तो वहाँ पे हमारी मतलब माई सुपरवाइज़र वॉज देयर एंड शी आस्क्ड उस्मान व्हाट अबाउट दोज पीपल जो अपने आईब्रोज और ये बोटॉक्स और फिलर्स करवा लेते हैं। ठीक है, सो आर फेशियल प्रोफाइलिंग एंड आर इम्यून सिस्टम इज सच स्ट्रॉन्ग कि वो आपके बोटॉक्स को और आपके फिलर्स को जहाँ से ना डिज़ोल्व कर दें, यू कम बैक टू योर दैट ओरिजिनल स्टेट। और एक और चीज़ क्या है, ये रेसिप्रोकल है। वी हैव आईब्रोज and from the eyebrows I can tell through facial profiling कि are you good at starting a project or a task or a lesson,
and how good you are at finishing a task, project or a lesson. Okay, so now if the case is कि आपने अपनी eyebrows change करवाई हैं, मतलब ठीक करवाई हैं या उनको alter करवाया है, तो उससे आपकी वो potential ability के ऊपर effect आ सकता है. Example, I read a case study. The left side is our private life, and one of that girl had the piercing of the left eyebrow. Okay, तो उससे क्या हुआ कि anger management and the private life was affected negatively. She was not able to manage her anger because of piercing of the left eyebrow. When she went to the profilist or the analyst, उसने suggest किया कि you remove that, and within 2 weeks she herself felt कि उसकी anger management in private life improved. So बताने का मकसद ये है कि it's a two-way process. ठीक है, आप अपनी आईब्रो या कोई भी फेशियल फीचर को आर्टिफिशियली इम्प्रूव डिप्रूव करके उस पोटेंशियल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, नंबर 1. और उससे बेहतर और ऑथेंटिक चीज़ है कि आप जो हैबिट इंस्टॉल करेंगे, मतलब अगर आपने अपना विजुअल लर्निंग स्टाइल चेंज करना है या लर्निंग स्टाइल चेंज करना है, तो यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर विजुअल स्टाइल. अपनी आंखें ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें. उससे क्या होगा कि आपके आई के ऊपर या आपकी फेशियल फीचर पे वो फीचर जो है ना एनहांस होना शुरू हो जाएगा, जस्ट ऑन द बेस ऑफ एपिजेनेटिक्स. कि आपने अपने ऑकुलर मसल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, क्या होगा उनके अंदर? हाइपरट्रोफी होगी, हाइपोप्लेजिया होगा और वो स्ट्रेंथ बन जाएगी. समझ आई? सो दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग फेशियल प्रोफाइलिंग इज़, और उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है.